Continuing with the ecological factors, today's topic is water. There occurs an interchange of water between the Earth's surface and the atmosphere, forming the water or hydrologic cycle. वायुमंडल से वर्षण के रूप में जल पृथ्वी पर आता है तथा पृथ्वी से पुनः वायुमंडल में वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा पहुंचता है। इस प्रकार जल का पृथ्वी से वायुमंडल तथा पुनः वायुमंडल से पृथ्वी पर निरंतर चक्रण होता रहता है, जिसे जलीय चक्रण या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। Precipitation is the chief source of soil water. Precipitation is the result of gravitational pull on the vapor in atmosphere. Various forms of precipitation are drizzle, minute drops floating in the air या फुहारें, rain, वर्षा, snow, बर्फ, dew, ओस, frost, पाला, sleet, बर्फ के छोटे कण एवं हेल या ओले। Of all forms of precipitation, rain is the most important form. It is the source of soil water and also affects the humidity of atmosphere. मृदा जल का प्रमुख स्रोत है, साथ ही वायुमंडल आर्द्रता को प्रभावित करता है। In India, rains are caused by monsoons. Of the total water available during annual precipitation, 45% flows into the rivers. 45% नदियों में बह जाता है, 20% भूमि में रिसाव हो जाता है, percolates into the ground, and the remaining 35% is lost by evaporation. Effect of rainfall on vegetation. The amount of rainfall greatly influences vegetation. Rainfall distribution in different seasons of the year is important in regional distribution of vegetation. On high mountains, the regions are correlated with distribution of rainfall, where three regions are evident: the lower region with scanty rainfall, middle region or cloudy region with lots of rain, and upper dry region above the clouds, which is covered with snow and ice. Annual rainfall determines the type of vegetation in any region, like in plains. In tropical areas, heavy rainfall throughout the year. The type of vegetation in that region is evergreen forest. In regions with heavy rainfall during winters and low during summers, sclerophyllous forests, दृढ़पर्णी वन पाए जाते हैं। In areas with heavy rainfall during summers and low during winters, grasslands are present. And in regions where rainfall is scanty, deserts या मरुस्थल, वहाँ की predominant vegetation होती है। The amount of rainfall per year correlates with the type of vegetation present there. In deserts, the amount of rainfall varies from 0 centimeter to 25 centimeter. In grasslands, the rainfall is 25 centimeter to 75 centimeter. Dense forests occur where rainfall ranges from 75 centimeter to 125 centimeter, and above 125 centimeters, rainforests are present. ट्रॉपिक्स में वर्ष भर वर्षा होने से सदाहरित वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पे कि डेंस ट्रीज टुगेदर विद क्लाइंबर्स, श्रब्स, फर्न्स एंड हर्ब्स सभी सघनता से उगे रहते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं, वो इस प्रकार से हैं: मैंगीफेरा, सेपिंडस, एल्स्टोनिया, पॉलीएल्थिया, डेंड्रोकैलमस, पैंडेनस एटसेट्रा। इस प्रकार की वनस्पति वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट पर हमें देखने को मिलती है। The regions where heavy rains occur in few months, जहाँ पे भारी बारिश कुछ ही महीनों में हो जाती है,
वहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट या पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहाँ के प्रमुख जो स्पीशीज हैं वो इस प्रकार से हैं: शोरिया रोबस्टा या साल एंड टेक्टोना ग्रैंडिस या सागवान। इस प्रकार के वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। वर्षा व तापक्रम के मध्य होने वाली इंटर रिएक्शंस किसी स्थान विशेष की वनस्पति पर गहरा प्रभाव डालती हैं। अत्यधिक वर्षा व उच्च तापक्रम के फलस्वरूप संसार की उच्च विकसित वनस्पति ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उत्पन्न होती है। जैसा कि हम बता चुके हैं, अगर वर्षा काफी हो लेकिन तापक्रम कम हो तो ऐसे स्थान की वनस्पति में लाइकन्स, कॉनिफेरस फॉरेस्ट प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। वर्षा कम हो लेकिन तापक्रम उच्च हो तब वनस्पति में छोटी छोटी झाड़ियां या मासल, कैक्टाई, सक्यूलेंट्स उत्पन्न होते हैं या हम कह सकते हैं ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन इज डोमिनेंट। मॉडरेट वर्षा और लंबी शुष्कता के फलस्वरूप ड्राई, डेसिडुअस या थॉर्नी स्क्रब वेजिटेशन विकसित होती है। शिम्पर के अनुसार पौधों को जल के महत्व के अनुरूप 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। Ecological classes of plants which are based on water relations according to Schimper are hydrophytes, mesophytes and xerophytes. Effects of other forms of precipitation on the vegetation are also evident. बर्फ या हिम के भार से पौधे की शाखाएं टूट जाती हैं, विशेषकर उस समय जब भारी हिमपात के बाद तेज हवाएं चलती हैं। बर्फ के भार से सैपलिंग्स भी टूट जाते हैं। शंकुधारी पादपों की नीचे वाली शाखाएं यदि लंबे समय तक बर्फ से ढकी रहें तो उनमें कवकों का संक्रमण हो जाता है। बर्फ का अल्प सर्पण या स्लाइट क्रीपिंग ऑफ स्नो वर्षों को विकृत कर देता है। पत्तियों व स्तंभ पर जब बर्फ के जम जाने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जहरीले पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं एंड प्लांट सफोकेशन महसूस करने लगते हैं। उसी प्रकार से hail and sleet are also injurious to plants, breaking tender branches, flowers and fruits, whereas dew is beneficial to plants. कुछ पौधों की पत्तियां द्वारा ओस की बूंदें अवशोषित कर ली जाती हैं। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ रेनफॉल ऑन वेजिटेशन समाप्त होता है। थैंक्स।